You are again welcome in my channel Maths by Rajeshwar Chauhan. In last video we have discussed about the topic operation on sets. In this video we will discuss about the topic complement of a set. Start करते हैं हमारा आज का टॉपिक complement of a set. Let U be the universal set and A be the subset of U. Then complement of A is denoted by either A dash or A C, and this is equal to X such that X belongs to U and X does not belongs to A. It means simply we can say that is U minus A. याद रखिए स्टूडेंट्स की कभी भी हमें अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो वी मस्ट हैव द यूनिवर्सल सेट. मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था पहले वीडियो में भी कि जब हमें कोई भी सेट का किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो वी मस्ट हैव द यूनिवर्सल सेट. विदाउट यूनिवर्सल सेट वी कैन नॉट फाइंड आउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट. It means if you have to find out the complement of any set, then this is the subset of U. It is clear? So this is the complement of set. It means let us suppose if you are given U equal to 1 2 3 4 and so on up to मान लीजिए 9 दिया है and A is equal to 1 4 7 9. तो it means complement of A dash or AC is equal to that is U minus A. It means the element of U which is not included in A. It means 1 को हटा दो, 2 3 4 हटा दीजिए, 5 6 7 को हटा दीजिए, 8 और 9 हटा दीजिए. तो this is the value of A dash. It is clear? Let us suppose if U is the set of all natural number and A is the set of all odd numbers, then complement of A is set of all even numbers. अगर U टोटल नेचुरल नंबर हो गया, A मान लीजिए ऑड नंबर है तो A डैश इवन नंबर हो जाएगा. अगर A ऑड नंबर है इवन नंबर है तो A डैश ऑड नंबर हो जाएगा. Is it clear? Now if you have to find out the value of double complement, it means A dash whole dash that is equal to U minus A dash. It means subtract the element of A dash from U. तो it means 1 आ जाएगा, 2 हट गया, 3 हट गया, 4 5 और 6 डिलीट कर दीजिए, 7 8 डिलीट कर दीजिए, 9. तो this is called the double complement. It means that is equal to A. 1 4 7 9 फिर से A आ गया. तो it means A dash whole dash is equal to A. Another example, if U equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A equal to 1 2 4 6 8, B equal to 1 3 5 6 9, then find the value of A dash, B dash, A union B whole dash and A intersection B whole dash. Now for solution, first of all you have to find out the value of A dash. A dash means U minus A, and that this is U minus A. 1 2 cancel हो गया, 3 4 cancel, 5 6 cancel, 7 8 cancel, 9. So this is A dash. Now B dash. B dash means U minus B. U minus B means U में से B के एलिमेंट्स घटा दीजिए, 1 cancel, 2 3 cancel, 4 5 6 cancel, 7 8. Clear? So this is A dash and B dash. Now if you have to find out the A union B whole dash, so first of all we have to find out the value of A union B. So it means collect all the equal to 1 दोनों में आ रहा है, 2 3 4 5 6 7 कोई से में भी नहीं आ रहा तो इसमें भी नहीं आएगा, तो 8 9. तो दिस इज A यूनियन B. अब A यूनियन B का होल डैश निकालना है तो U माइनस A यूनियन B आ जाएगा. तो U में से A यूनियन B के एलिमेंट्स माइनस कर दिए तो 1 2 3 4 5 6 8 9 सब आ रहे हैं एक्सेप्ट 7.
तो इट मींस A यूनियन B होल डैश इक्वल टू 7। नाउ इफ यू हैव टू फाइंड आउट द A इंटरसेक्शन B का होल डैश, तो पहले A इंटरसेक्शन B निकालना पड़ेगा, यानी A और B में कितना कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है कॉमन और 6 आ रहा है, तो 1 and 6। तो नाउ A इंटरसेक्शन B होल डैश equal to U minus A intersection B. It means subtract all the elements of A intersection B from U. तो 1 और 6 हटा दीजिए, तो 2, 3, 4, 5, 7, 8 and 9. तो this is the value of A intersection B whole dash. Now we have to take the properties of the complement of a set. Clear? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज A यूनियन A डैश, क्योंकि A और A डैश में कुछ भी कॉमन नहीं होता और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। तो A यूनियन A डैश इक्वल टू U, एंड A और A डैश में कॉमन कुछ नहीं आता, तो इसलिए उनका इंटरसेक्शन दोनों का 5 होगा। अभी अभी आपको मैंने बताया था कि A डैश होल डैश इक्वल टू A, दीज आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट लॉ कह सकते हैं इनको डायरेक्ट, कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्लियर? दिस इज कॉल्ड द डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, डबल कॉम्प्लीमेंट। फाइव डैश इक्वल टू यू एंड यू डैश इक्वल टू 5। आपको पता 5 में कुछ भी एलिमेंट नहीं होते, तो u में से अगर उनको माइनस करोगे तो u ही आ जाएगा, और u डैश का मतलब u में से u के एलिमेंट सारे घटा दोगे तो 5 आ जाएगा। तो दे आर कॉल्ड द लॉज ऑफ 5 एंड u। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन्स लॉ। ये ग्रेट मैथमेटिशियन डी मॉर्गन ने दिए थे, तो इसलिए उन्हीं के नाम पर इन दोनों लॉज का नाम है, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। फर्स्ट है A यूनियन B होल डैश इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, एंड A यूनियन B होल डैश इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। यानी अगर हम यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो दोनों के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाता है, और अगर दो सेट के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो दोनों के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बन जाएगा। Now we have to prove these properties, these De Morgan's law by the help of example, by the help of Venn diagram, and by the help of mathematically. But before this, you have to know about the Venn diagram of complement of a set. Let us suppose this is U and this is A. So it means what is the value of A dash? A dash means U minus A. तो U में से ये A का एलिमेंट ये घटा दीजिए, तो this is called the A dash. Is it clear? तो this is A dash. This is the value of A dash. Now we have to find out, we have to prove these De Morgan's law by an example. पहले example De Morgan's law by an example. These are two De Morgan's law. So you have to take, let us suppose example U equal to 1 to 9, A equal to 1 2 4 6 8, B equal to 1 3 5 6 and 9. Now first part हम prove कर रहे हैं पहले, A union B whole dash equal to A dash intersection B dash. Now first of all you have to find the value of A union B. A union B means 1 2 3 4 5 6 8 9. Now A union B whole dash is equal to 1 2 3 4 5 6 8 9. तो केवल कितना बच रहा है, 7 नहीं आया है U में से। क्लियर? तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ A डैश, क्योंकि हमें A डैश और इंटरसेक्शन B डैश, तो पहले A डैश निकालेंगे फिर B डैश, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। तो A डैश कितना आया, U माइनस A, 1 घट गया 2 हट गया, कितना बचा 3 5 7 9, क्योंकि 1 2 4 6 8 हट गया यहाँ से। इसी प्रकार B डैश निकालेंगे हम, तो B डैश का मतलब U माइनस B, तो 1 नहीं है 2 आएगा, 4 5 6 हो गया, 7 8। क्लियर? नाउ A डैश
इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, केवल 7 आ रहा है। तो इट मींस दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की लेफ्ट राइट साइड इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, यह लिख लेते हैं, चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कितना आया, ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। So this is the first part of the De Morgan's law. Similarly, the second part, A intersection B का whole dash equal to A dash union B dash. So first of all, you have to find out the value of A intersection B. A और B में common कितना है, 1 है और 6 है, तो 1 and 6. Now A dash union intersection B का whole dash equal to कितना, अब A इंटरसेक्शन B U में से ये घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 2 3 4 5 7 8 9। इज इट क्लियर? इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब हमें A डैश और B डैश चाहिए। A डैश B डैश हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो A डैश और B डैश का यूनियन निकालना है अब हमें। तो A डैश यूनियन B डैश। क्लियर? तो इन दोनों को कंबाइन कीजिए जरा, कितना आएगा, A डैश और B डैश को, 1 को इसे में भी नहीं आ रहा है तो 1 इसमें भी नहीं आएगा, 2 3 4 5 6 को इसे में भी नहीं आ रहा है, 7 8 और 9, 7 8 एंड 9 इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 देखो अब दोनों की राइट साइड इक्वल आ रही है, तो इट मींस लेफ्ट साइड भी इक्वल आएगी। तो ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। De Morgan's law by Venn diagram। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेन डायग्राम, पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी कंप्लीट कवर हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी। क्लियर? अब सेकंड पार्ट में हम ए यूनियन बी का होल डैश निकालेंगे भाई। क्लियर? तो ए यूनियन बी का होल डैश का मतलब यू में से ए यूनियन बी घटा दीजिए तो क्या बचेगा, केवल ए और बी बच जाएगा, छोड़ देंगे बाकी सारा आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल डैश। क्लियर? नाउ ए डैश, ए डैश का मतलब ए को छोड़ दीजिए बाकी सारा आ जाएगा। दिस इज ए डैश। सिमिलरली अगर हमें बी डैश निकालना है तो बी को छोड़ दीजिए बाकी सारा हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू बी डैश। अब हमें निकालना ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन। तो ए डैश और बी डैश का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन ये आएगा, तो यहां से इन दोनों का यूनियन लेना है। देखिए इसमें ए नहीं आ रहा लेकिन इसमें आ रहा है। क्लियर? इसमें बी नहीं आ रहा लेकिन बी छूट गया। ए यूनियन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों का कॉमन पार्ट लेना है। तो दोनों का कॉमन पार्ट का मतलब है, देखिए इसमें से ए छूट गया, इसमें से बी छूट गया, तो ए और बी दोनों ही छूट जाएंगे, तभी हमारा इंटरसेक्शन आएगा। क्लियर? तो इसका मतलब यहां से ए और बी का दोनों का ही पार्ट छूट जाएगा। क्लियर? तो इट मींस दिस इज इक्वल टू ए यूनियन, ये कितना आया, ए डैश यूनियन इंटरसेक्शन बी डैश। क्लियर? अब जरा देखिए सेकेंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट दोनों सेम फिगर है, तो इसका मतलब A यूनियन B का होल डैश इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ द सेकंड लॉ, सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B का मतलब है ये वाला पार्ट आएगा दोनों में कॉमन। क्लियर? तो ये हुआ आपका A इंटरसेक्शन
बी। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। क्लियर? तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ दीजिए, बाकी सारा आ जाएगा। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। नाउ ए डैश, ए डैश का मतलब ए को छोड़ दीजिए, इसमें ए छूट जाएगा। क्लियर? तो ये हुआ ए डैश। सिमिलरली बी डैश निकालना है तो इट मींस लीव बी। तो दिस इज इक्वल टू बी डैश। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब है कि इनमें अगर कोई से एक में भी आ रहा है तो इसमें जरूर आएगा। अब जरा देखिए, ये वाला पोर्शन इसमें नहीं आ रहा है लेकिन इसमें आ रहा है। क्लियर? ये वाला पोर्शन इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों पोर्शन तो कवर हो गए। लेकिन ये वाला जो बीच का पोर्शन है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ये कोई से में भी नहीं आ रहा है, तो इट मींस उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। तो इसका मतलब केवल वही पार्ट छूट जाएगा, बाकी सारा पार्ट आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो दिस इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। अब जरा देखिए, इसको मैं फर्स्ट मान लूं, इसको सेकंड मान लूं, इसको थर्ड, इसको फोर्थ और इसको अगर फिफ्थ मान लूं, तो फ्रॉम सेकंड एंड फिफ्थ दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो दिस इज द डी मॉर्गन्स लॉ बाय वेन डायग्राम। Now we have to prove the De Morgan's law by mathematics। लॉ को मैथमेटिकली प्रूव करने से पहले कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि जैसे सपोज आपने टॉपिक पढ़ा था A सबसेट B। क्लियर? तो A सबसेट B का मतलब होता है कि X को अगर हम A में लेकर चलें और X को B में दिखा दें तो इट मींस X इज द A में लेकर चले, यानी X belongs to A implies X belongs to B, इट मींस A सबसेट B। एक थिंग तो ये, ऐसे ही अगर हम B सबसेट A दिखाएंगे, B सबसेट A दिखाएंगे तो इट मींस इसका उल्टा X belongs to B लेकर चलेंगे, या Y कोई और एलिमेंट ले लीजिए, implies Y belongs to A, यानी Y B का एलिमेंट लिया, उसी को हमने A का एलिमेंट दिखा दिया, तो इसका मतलब B सबसेट A। अब A सबसेट इक्वल टू B हो सकता है, B सबसेट A हो सकता है, तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A इक्वल टू B हो जाएगा। क्लियर? तो इसी प्रकार अगर हमें ये दिखाना है तो हम एक बार इसको इसका सबसेट दिखा देंगे, एक बार इसको इसका सबसेट दिखा देंगे बाय दिस। क्लियर? तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा। सिमिलरली ये प्रूव कर सकते हैं फिर हम, लेकिन उससे भी पहले अगर आपका x A में है तो इसका मतलब क्या होगा कि x डज नॉट बिलोंग्स टू A डैश होगा, यानी A में है तो A डैश में नहीं आएगा। इसी प्रकार अगर x A डैश में है, y ले लेते हैं, तो इसका मतलब y A में नहीं होगा, अगर A डैश में है तो A में नहीं होगा। एक कंडीशन ये है। उसके बाद अगर x बिलोंग्स टू A यूनियन B है, जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सारी चीजें हमें जरूर पड़ेंगी यहाँ पे। अगर x A यूनियन B में है तो इसका मतलब x या तो A में है और x B में है, क्योंकि अगर A यूनियन B में आया है तो इसका मतलब या तो A में होगा या B में होगा, तभी यूनियन में आएगा। और अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B है, अगर A यूनियन B में x नहीं आया है, y ले लेते चलिए, अगर y A यूनियन B में नहीं आया है तो इसका मतलब होगा कि y ना तो A में है एंड ना B में है, क्योंकि अगर A यूनियन B में नहीं आया है तो इसका मतलब कोई से में भी नहीं है, तभी यूनियन में नहीं आया। अगर इन दोनों में से कोई से एक में भी होगा तो वो यूनियन में जरूर आता है। क्लियर? इसी प्रकार अब नेक्स्ट है, अगर x A इंटरसेक्शन B में है तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। अगर इंटरसेक्शन में आया है तो इसका मतलब दोनों में है तभी इंटरसेक्शन में आया है। इसके विपरीत अगर y A इंटरसेक्शन B में नहीं है तो इसका मतलब क्यों नहीं आया, क्योंकि
y या तो a में नहीं है और या b में नहीं है। अगर कोई से एक में नहीं है, यहाँ और आएगा, अगर a में या b में से कोई से एक में नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो ये चीजें हम यहाँ पे अब यूज करेंगे स्टूडेंट। इज इट क्लियर? और वो कैसे यूज करेंगे अब इसका देख लीजिए प्रूफ। सबसे पहले हम लेते हैं x belongs to a यूनियन b का होल डैश इज इक्वल टू, इट मींस इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर x a यूनियन b के होल डैश में है, इसमें लेके चले, इसमें दिखाएंगे, a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब है कि a यूनियन b में नहीं होगा। ये कौन सा पार्ट हमने लगाया है कि अगर x a डैश में है, अगर x यानी y a डैश में है तो a में नहीं होगा। समझ में आ गया? उसके बाद अगर x a यूनियन b में नहीं आया है तो इसका मतलब क्या है, या तो a में भी नहीं है और b में भी नहीं है, तो एंड आएगा, यानी x does not belongs to a and x does not belongs to b। इट मींस अब अगर x a में नहीं है तो किस में होगा, a डैश में होगा, x b में नहीं है तो किस में होगा, b डैश में होगा, x a डैश में भी है b डैश में भी है, तो इसका मतलब x उन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, a डैश में भी है b डैश में भी है, तो इसका मतलब a में भी है b में भी है तभी तो इंटरसेक्शन में आएगा, a डैश में भी है b डैश में तभी तो इंटरसेक्शन में आएगा। क्लियर? तो इसका मतलब हम इसमें लेकर चले थे a यूनियन b के होल डैश में, और हमने किसमें दिखा दिया, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। इक्वेशन नंबर 1 चाहो तो यहाँ पे इक्वल टू भी लगा सकते हो कि सबसेट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। सिमिलरली अब लेकर चलेंगे हम इसमें y बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर a डैश इंटरसेक्शन b डैश में है तो y बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन में आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि a डैश में भी है और b डैश में भी है। समझ में आया? क्लियर? अब ओके, अगर a में नहीं है तो इसका मतलब क्या है, a में a डैश में है तो इसका मतलब a में नहीं होगा, और b डैश में तो है इसका मतलब b में नहीं होगा। अब देखिए y ना a में है ना ही b में है, तो इसका मतलब ना a में है ना b में है, तो इसका मतलब किस में नहीं होगा, ना a में है ना b में है, एंड आ रहा है ना, तो ना a में है ना b में है, तो इसका मतलब यूनियन में नहीं होगा उनके, तो y does not belongs to a यूनियन b। और अगर a यूनियन b में नहीं है तो इसका मतलब किस में होगा, फिर उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। इज इट क्लियर? तो इसमें लेकर चले थे, इसमें दिखा दिया, इसका मतलब a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b का होल डैश। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जरा, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब a b का सबसेट हो गया, b सबसेट a हो गया, तो इसका मतलब a इक्वल टू b आ जाएगा। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा फर्स्ट डिमॉर्गन्स लॉ प्रूव हो जाता है। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? इसी प्रकार हम इसका सेकेंड पार्ट लेकर चलेंगे स्टूडेंट। अब जरा उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, सेम है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें भी। तो इसी क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू लेकर चले पहले a इंटरसेक्शन b के होल कॉम्प्लीमेंट में, तो इसका मतलब क्या है कि x a इंटरसेक्शन b में नहीं होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट में तो इस सेट में नहीं होगा, और अगर इंटरसेक्शन में नहीं है तो इसका मतलब या तो a में नहीं है और या b में नहीं है, तभी वो इंटरसेक्शन में नहीं आया है। तो इसका मतलब अगर x a में नहीं है तो x a डैश में होगा, और b में नहीं है तो इसका मतलब b डैश में होगा, या तो a डैश में है या b डैश में है, तो इसका मतलब उनके यूनियन में होगा। क्लियर? तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन b का होल डैश इज ए सबसेट ऑफ a डैश यूनियन b डैश। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली y बिलोंग्स टू a यूनियन b का होल, सॉरी इसमें लेकर चलेंगे a डैश यूनियन b डैश में, तो अगर a डैश यूनियन b डैश में है तो y डैश y बिलोंग्स टू किस में,
ए डैश में होगा या बिलोंग्स टू बी डैश में होगा, तभी तो यूनियन में आया है। अब अगर ए डैश में नहीं है तो इसका मतलब ए में नहीं होगा, और बी में नहीं है, बी में है तो इसका मतलब बी डैश में नहीं है, तो इसका बी डैश में है तो इसका मतलब बी में नहीं होगा। क्लियर? अब देखिए ए में नहीं है या बी में नहीं है तो इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन में तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? और आ रहा है ना, अगर कोई से एक में भी नहीं है तो उसके इंटरसेक्शन में नहीं आ सकता। क्लियर? और अगर इस सेट में नहीं है तो इसका मतलब किस में होगा फिर? ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। क्लियर? तो ये लेकर चले थे, इसमें ये दिखा दिया, तो इसका मतलब ए डैश यूनियन बी डैश इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 दिस इज द सेकेंड डी मॉर्गन्स लॉ। तो स्टूडेंट ये था हमारा डी मॉर्गन्स लॉ बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, बाय द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम एंड बाय द हेल्प ऑफ मैथ्स। ये था हमारा टॉपिक complement of a set. It means the properties of the complement of set. De Morgan's law by the help of 3 ways: by the help of example, by the help of Venn diagram and by the help of mathematically. दोस्तों अगर आप we will discuss about the topic practical problem on union and intersection of two sets or more than two sets, means 3 सेट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ इस यूनियन और इंटरसेक्शन की। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में जिसका नाम होगा हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर सेट। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।